lot of people sitting in front of me, but I didn't realize I was called immediately. I should have noted my names also. Prakash Chandra Sharma ji, I am looking for this. The Central Council member, Mr. Rajiv Singhvi ji, Mukesh Bansal ji, Vijay Garg ji, अभी देख ली नजर भी कम आ रहा है मुझे जरा, पंसाली जी, of course, the Central Council nominated member, Mr. Vijay Jalani ji, Central Council member, Mr. MP Vijay Kumar ji. The others, if I am not able to see, please excuse me, ladies and gentlemen. Well, friends, regarding charitable trusts, let me tell you two topics in income tax so far. I don't know, I'm going to criticize it, but my future is not that bright also. Because today I'm criticizing this, tomorrow people will criticize me when I make a new law, when I make. But two subjects we don't know. One is Hindu undivided family, and the other is charitable trust. Believe me, no one knows anything, including me. Believe me, no one knows. It's very difficult topics. Hindu undivided family, even Supreme Court has given many judgments on Hindu undivided family, but they keep on changing those judgments also in the due course of time. And regarding charitable trust, till last year, nobody knew how to file a return of charitable trust, let me tell you. The Form 7 which was there, nobody was able to fill up that form also. That type of a situation was there in the case of charitable trust. Some improvement has taken place and continuing dialogue is being done with the Institute of Chartered Accountants of India. I am told they are revising the forms and they have invited many members of the institute to discuss about those forms, about how to fill up those forms and what are the deficiencies in those forms. Coming to now charitable trust. Well, friend, before I take up charitable trust, let me take you to a very important point. And that is Section 57, subsection 2, clause 10, which has changed the whole scenario of charitable trust. Remember what was Section 56, subsection 2, clause 7? It was where an individual or HUF receives any sum of money aggregating exceeding rupees 50,000, whether for one person or more than one person, or immovable property, whether without consideration or for inadequate consideration, or a movable property in aggregate where the difference between the market value and the gifted market value and the sale price was more than 50,000, it was taxable. Now, please take this issue first and then talk about many things. Earlier, you could give to anyone. Of course, individual in HUF it was taxable, and related person it was not taxable. Then the planning was going on that if you make a gift to AOP, what will happen? Obviously, it was Section 56, subsection 2(7) was only for individual and HUF, and it was not for AOP. Section 56, 2(7)(a) was shares gifted to or shares acquired by company or firm was there. AOP was not there. Now, please look into the language of Section 56, subsection 2, clause 10. And then we will discuss this, because thereafter I have a lot of other discussion. Where any person receives from any other person or person, where any person receives from any other person or person, in aggregate, a sum of rupees 50,000, exceeding 50,000, sorry, in aggregate, that will be treated as, without consideration, that will be treated as the income of the person who has received that. Please consider amount received in money more than 50,000 in aggregate, whether from one person or more than one person, it is taxable in the hands of the recipient. Who is the recipient now under 56(2)(10)? Recipient will be any person, whether individual, HUF, firm, company, AOP, BOI, local authority, any person receiving more than 50,000
50,000 in aggregate sum of money, or any immovable property whose stamp duty value is more than 50,000, or any movable property whose fair market value is more than 50,000, you receive it, it is now taxable. Earlier it was only in case of individual HUF. As regards all assets are concerned, means the assets which are notified, that is property meaning was concerned, whereas in the case of a company or a firm it was only for shares which were received without consideration or for inadequate consideration. Now all movable property or immovable property includes of course shares, jewelry, archaeological collection, drawings, painting, sculpture, work of art, all those things. But what I am trying to explain, please now concentrate. I am not taking about 56 to 10, I am telling you. There are certain exceptions where this is not taxable. Gift from a relative, no problem. Gift, you have acquired property by way of succession or inheritance, no problem. Gift on occasion of marriage, no problem. Now try to understand. If amount is received by a charitable trust or donated by a charitable trust, received by a charitable trust, which is registered under section 12AA, or which has been granted approval under section 10 clause 23C. मैं क्या बताने जा रहा हूं कि अगर डोनेशन मिला है एक चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है 12AA में, तभी ये माफ होता है। अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है 12AA में, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय दैट ट्रस्ट, which is no doubt a charitable, which is no doubt a religious, but not registered under 12AA or 1023C, shall be liable to pay income tax if that amount of donation which they have received exceeds rupees 50,000. There are so many religious trusts in this country which have not been registered under 12AA, or which are not registered, or which are not which have not got approval under 1023C. Now, if there is a temple, gurudwara, mosque, or a church, those who have received amount exceeding rupees 50,000 as donation, in a box, everywhere you get a donation, more than 50,000, it is taxable in their hand if they have received it on or after 1/4/2017. Please try to understand this point. I have made it clear many times to people, but they have not realized the implication of this matter. That means a temple, a gurudwara, a mosque or a church receiving donation more than 50,000 in aggregate, whether from one person or more than one person, the entire income is taxable unless that charitable or religious trust is registered under 12AA or got approval under section 1023C. And many are not registered. There is a scope for registration. If you have to apply for registration, you should apply for registration before the end of the previous year, because there is no condonation, which was earlier at one point of time there. So you have to make an application before 31st March 2018 if you want an exemption of income which they have received as a donation, because section 2 clause 24 subclause 2I says any voluntary contribution received by any trust or institution shall be fully taxable. Voluntary contribution. It is an income, and if it is more than 50,000, it is taxable. Wait. If people are asking me, if we apply for registration today, and let's hope we get a registration, our income for assessment year 18-19, previous year 17-18, of course, will be exempt because now we are granted registration. What about the past years? There may be past 6-year cases, they may give a notice. What is the position? Because you have not paid taxes that year, and is it taxable or not? I said there is a proviso under section 12A subsection 1. The proviso says that if you make an application for registration
registration and you have been granted registration, let's say, then if there is a case pending prior to that year, prior to that previous year, if there is a case pending, assessee will be eligible to take exemption, whatever was allowed under section 11 in that case. If there is a case pending. Past years, 6 years, also benefit will be available to you once you get yourself registered. Second case, if there is no case pending, then no notice will be given under section 147, means 148 notice, you will not be assessed under 147, only on account of non-registration. Only on account of non-registration. मैं क्या कह रहा हूं, अभी भी चांस है जो चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है वो 31 मार्च 2018 तक अप्लाई कर दें। अगर वो कर देंगे और उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो जो पिछले सालों के 6 साल के केस हैं अगर पेंडिंग है उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर उनको रजिस्ट्रेशन मिल गया, जो 11 सेक्शन की एग्जेम्पशन है। अगर वो रजिस्टर्ड, अगर केस पेंडिंग नहीं भी है तो 148 का नोटिस नहीं आएगा, ओनली फॉर दिस रीजन, एनी अदर रीजन वी आर नॉट कंसर्न, ओनली फॉर दिस रजिस्ट्रेशन दैट यू डोंट हैव ए रजिस्ट्रेशन। ये दो बेनिफिट मिल सकते हैं अगर किसी ने वो मंदिर, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च और चैरिटेबल ट्रस्ट को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं। ये मैं फोरवार्निंग कर दी, अब मैं शुरू कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाद में क्या लास्ट में लोगों को पता लगता है जल्दी जल्दी में निकल जाता है। आइए, now what are the sections given for charitable trust and institutions? Section 11, 12 and 13, only 3 sections हैं, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई लॉ है वो चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट का है। क्या कहता है? Subject to the provisions of section 60 to 63, the following income shall not be included in the total income of the person receiving the same. Following income shall not be included. मेरा वर्डिंग सुनना, इसका मतलब है shall not be included in the total income of the person receiving the same. Any income derived from a property held under a trust for charitable or religious purposes to the extent such income is spent or applied for charitable or religious purposes in India. जितने भी इनकम आई अगर आप उसमें से जितना खर्च कर दोगे फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस इन इंडिया वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। प्लस इफ देयर इज एनी इनकम सेट अपार्ट और एक्यूमुलेटेड, so much of the income set apart or accumulated which does not exceed 15% of such receipts. ये कह रहा है कि आपको जो रिसीट्स आई हैं, इनकम आई है, वो माफ है to the extent it is applied for charitable religious purposes in India. In India. And if any amount is set apart or accumulated, so much of the amount set apart or accumulated which does not exceed 15%. सबको मालूम है 15% माफ है और 85% स्पेंड कर सकते हैं, और सबको मालूम है कि 85% स्पेंड नहीं किया तो आप 11(2) में उसका इन्फॉर्म कर सकते हैं बाय फिलिंग इन द फॉर्म 10। मैं इशू क्या ले रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना, मैं लॉ नहीं पढ़ाने जा रहा। एक तो 15% एग्जेम्प्ट है इन्हें और 85% स्पेंड करना है, बट वेट कीजिए, इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस इन इंडिया वो एग्जेम्प्ट है। अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम में पॉइंट आता है, दो तरह की एप्लीकेशन मानी जाती है, इनकम एक्चुअली अप्लाइड एंड इनकम विच इज डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड। अप्लाइड एक्चुअली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड। जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना सर, 2 सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 11-12 जिसको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है अंडर 12AA। देयर इज अनदर सेक्शन कॉल्ड 1023C। 1023C हम लोगों को ज्यादा पता है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन वहां पर भी रिलीजियस ट्रस्ट आते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट आते हैं अंडर सेक्शन 1023C IB and B। अब जरा ध्यान से सुनना,
सेक्शन 11 में एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है जिसे बोलते हैं डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड। डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड, ये सेक्शन 11-12 में तो एक्सप्लेनेशन है 11 में, लेकिन 1023C को ये एलिजिबल नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। In section 1023C, there is no concept of deemed to have been applied. In section 11, and when you are taking exemption under 11 and 12, there is a concept of application deemed to have been applied during the previous. ये मैं example देता हूँ. If there is an income which has not been received during the previous year, but you are following mercantile system of accounting, आप एक मर्केंटाइल सिस्टम कर रहे हैं, आपने एक एफडीआर बना रखी है 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। एक एफडीआर बनाई 1 करोड़ रुपए की, 6% या कोई 7% इंटरेस्ट रेट से। पहले साल 7 लाख रुपया ड्यू हुआ। आई हैव नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट ईयर, आई विल रिसीव इट ओनली आफ्टर 5 years. हाउ विल आई अप्लाई दैट? I will receive only after 5 years because it is a compound interest and it is a mercantile system accounting I am following. तो मैं उसको खर्च कैसे करूँगा? सेक्शन 11 में एक्सप्लेनेशन दे दी that if you have not received the income but it is taxable on mercantile basis, you can give an undertaking in form number 9A saying that I will apply this income in the previous year in which it is received or year following that. Year following that. मैं एक अंडरटेकिंग कह सकता हूं कि मैं 5 साल के लिए बनाई है, 5वें साल जब पैसा मुझे आएगा तब मैं खर्च करूंगा या उससे अगले साल खर्च करूंगा, तो वो डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड मानी जाती है अगर ऐसी इनकम है। ये कॉन्सेप्ट 11 सेक्शन में है, ये कॉन्सेप्ट 1023C सेक्शन में नहीं है। ये ध्यान रखना, ये 11 में है, 1023C में नहीं है। 1023C में आप ये एप्लीकेशन नहीं दे सकते कि आई अप्लाई द ईयर इन विच आई रिसीव इट। सेकंड पॉइंट, इफ आई कुड नॉट स्पेंड दैट इनकम फॉर एनी अदर रीजन, मेरे पास इनकम आई 28 मार्च को, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, मैं उसको खर्च नहीं कर सकता, मेरे भी एनी अदर रीजन, यू गिव एन अंडरटेकिंग अंडर फॉर्म नंबर 10A 9A बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, आई स्पेंड दिस इनकम नेक्स्ट ईयर, आई अप्लाई दिस इनकम नेक्स्ट ईयर, तो ये भी डीम्ड एप्लीकेशन माना जाता है। सर 1023C में अभी बाद में टेक्निकल हो जाऊंगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, 1023C-IV में चैरिटेबल ट्रस्ट आते हैं, 1023V में रिलीजियस ट्रस्ट भी आते हैं जो अप्रूव्ड है। अगर वो इनकम ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होने वाली है तो सेक्शन 11 तो आपको स्कोप देता है to give an undertaking to apply this income in the year in which I received or year following that. But 1023C आपको कोई स्कोप नहीं देता ऐसा करने के लिए। 1027 ये भी कहता है if you could not spend this income for any reason, any other reason, you can give an undertaking that I'll apply this next year, और वो भी deemed application माना जाता है। 1023C ऐसा कोई आपको बेनिफिट नहीं देता। सो कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास ऑल्टरनेटिव होता है, दे माइट बी रजिस्टर्ड इन 12AA ऑल्सो, दे माइट हैव गॉट अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023C ऑल्सो। उनके पास चॉइस है आइदर टू गो फॉर 12AA और टू गो फॉर 1023C। 1023C में ये डीम्ड एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सो बी केयरफुल। ये ओनली 11 सेक्शन में कॉन्सेप्ट है फॉर एप्लीकेशन एट ए फ्यूचर डेट विच इज ट्रीटेड एज डीम्ड एप्लीकेशन। ये पहला डिफरेंस मैं आपको बता दूं। सेकेंड डिफरेंस, कॉर्पस डोनेशन। देखिए, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास 1023C है, इनकम एग्जेम्प्ट है, या 11 है, 12AA है, 11 में एग्जेम्पशन ले ली जाता है। सेक्शन 11(1)D कहता है कॉर्पस डोनेशन शैल बी एग्जेम्प्ट। कॉर्पस डोनेशन शैल बी एग्जेम्प्ट। जो कॉर्पस डोनेशन मिलता है विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर 11(1)D।
लेकिन 1023C में ऐसा कोई लॉ नहीं है। 1023C में कॉर्पस डोनेशन को भी अप्लाई करना पड़ता है, जैसे बाकी 85% आप अप्लाई करते हैं। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि लोग 1023C में जाने की कोशिश करते हैं, वो तो जाए जहां कॉर्पस डोनेशन नहीं है, क्योंकि 11(1)D very clearly says corpus donation, that is voluntary contribution without a specific direction, it will form part of the corpus of trust, is fully exempt. But there is no question of any exemption of corpus donation under section 1023C. Be careful about that. Another point now from corpus donation. The planning which we used to do has been completely stopped. That planning, let me tell you what used to happen is that one charitable trust can make a donation to another charitable trust, and it is treated as an application of income, and you get deducted. You treat it as an application. You need money. You have money. You are not able to spend it. You donate that money to another charitable registered charitable trust. It is treated as application of income. Absolutely no problem. But what people used to do is, they used to donate to another charitable trust which is covered under 12AA with a specific direction that it will form part of the corpus of the trust. मेरी बात समझ रहे क्या किया? मैं एक ट्रस्ट हूं, मेरे पास पैसा पड़ा है 5 करोड़ रुपया, मैं स्पेंड नहीं कर सकता आउट ऑफ करंट इनकम, अक्यूमुलेटेड इनकम तो डोनेट ही नहीं कर सकते. आई हैव डोनेटेड टू अनदर रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ दैट ट्रस्ट. तो क्या हुआ? मेरे लिए तो वो एप्लीकेशन हो गई, उसके लिए वो एग्जेम्प्ट हो गया. आई मीन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने 5 करोड़ का दान दिया, मैंने एप्लीकेशन ले ली, मुझे एग्जेम्प्ट मिल गई. उसके पास 5 करोड़ आया, कौन सा आया? विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट. तो वो स्पेंड ही नहीं करेगा, दे विल नॉट स्पेंड इट एंड इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. तो सारे ऐसे प्लानिंग कर रहे थे और वो और किसी को दे देता था, जो उसकी करंट इनकम होती थी वो और किसी को दे देता था और वो इसको वापस कर देता था. Are you getting my point? The circular way of managing these things खत्म हो गया. You cannot make a donation to another charitable trust with a specific direction that it will form part of the corpus of the trust. आप उसके लिए नहीं दे सकते. You can make a donation, but they will have to spend 85%. Now you can't say that it is for the exemption, it is for their corpus. प्लीज 12AA वाला दूसरे 12AA को दे रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे सकता कि ये कॉर्पस है. देगा तो वो मार्क नहीं, एप्लीकेशन नहीं मानेंगे. एक 1023C वाला है, वो दे रहा है 12AA को, वो भी नहीं दे सकता कि ये कॉर्पस के लिए है. लेकिन एक 12AA वाला है, वो 1023C वाले को दे रहा है, वो दे सकता है क्योंकि वहां कॉर्पस माफी नहीं है. अब बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं. मैं बात को बहुत टेक्निकल ले जा रहा हूं, कुछ जरा समझने की कोशिश कीजिए. मैं 1023C में रजिस्टर्ड हूं. आई कैन मेक ए डोनेशन आउट ऑफ द करंट इनकम टू अनदर ट्रस्ट. वो 1023C का है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है, कोई कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं. लेकिन अगर वो 12AA का है जिसको मैं डोनेट करने जा रहा हूं, तो आई कैन नॉट डोनेट विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट. अगर डोनेट करूंगा तो एप्लीकेशन नहीं मानेगा. यही वही सब. अगर एक रजिस्टर्ड 12AA है, दूसरे रजिस्टर्ड 12AA को कर रहा है तो कॉर्पस नहीं कर सकता. लेकिन रजिस्टर्ड 12AA है, 1023C को कर रहा है, तो वो कॉर्पस करे ना करे, क्योंकि उनके यहां कॉर्पस माफ होता ही नहीं है, उनको तो अप्लाई करने. एम आई क्लियर सर? ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट था. एम आई क्लियर? तो मुझे अंधेरे में यही है कि ऑडिटोरियम में आप उसके फेसेस नहीं दे सकते, फेस एक्सप्रेशन नहीं दे सकते. लगता है मैं बोले जा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर? बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मैंने क्लियर कर दिया. आगे चलता हूं. एक और बहुत इशू आता था. एक ट्रस्ट की इनकम है जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है. There is an income of a trust which is exempt under section 10 as per income tax. तो क्या उसको अप्लाई करना जरूरी है? Am I supposed to apply that income if it is an income which is exempt under 10? क्योंकि मैं 10 में एग्जेम्पशन ले लूंगा. 1038 की इनकम है, शेयर मैंने बेचे, उसका हो गया. कोई और इनकम है
म्यूचुअल फंड की इनकम है क्योंकि शेयर में तो लगा नहीं सकते, चैरिटेबल ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड में तो लगा सकते हैं, हमने उसकी इनकम आई 1038 में एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स और वो यूनिट्स। तो क्या ये एप्लीकेशन करने की जरूरत है? क्या ये एग्जेम्प्ट होगा? लॉ ने क्लियर कर दिया, इफ इट इज 10(1) एग्रीकल्चरल you need not apply that income. It is exempt in your hand, whether you are a charitable trust or anything. But if it is any other income which is exempt under section 10, that will have to be applied to claim exemption of the under section 11. आप ये नहीं कह सकते ये तो 10 की इनकम है सर, ये तो एग्जेम्प्ट ही है, तो इसलिए मुझे क्या जरूरत है, इसको मैं अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। You will have to apply that income if it is exempt under any other clause of section 10. But if it is covered under first clause, that is section 10 clause 1, then it need not be applied. This is another very, very important point in case of this. Be careful that all exempt income other than 10(1) received by a charitable or religious trust shall have to be applied for charitable purposes to the extent of 85% plus 15% exemption, whatever you have. Please be careful. You cannot say that it is exempt, so I need not pay tax on that, I need not apply that. Another issue which has also been settled, if there is a capital expenditure incurred on the acquisition of an asset and you have claimed it as an application, capital expenditure is also, application includes revenue expenditure as well as capital expenditure. You have incurred a capital expenditure and you have claimed this as an application, then depreciation on that asset shall not be allowed and not be treated as application of income. Be careful. Earlier there were hundreds cases that depreciation is allowed. But already law has been changed saying that you have two choices. One, either to claim it as an application, as a capital expenditure, the matter is over. Thereafter you cannot think of depreciation as an application. But if you don't want to claim that as an application, then in that case, you can claim depreciation on that. Either the two. You cannot claim both capital expenditure as well as application as well as depreciation on that capital expenditure, which was hitherto allowed. So be careful about that part also. It is also a very complicated issue which has now been settled over the years, that be careful about that part. Next, application. I have already told you, donation by one trust to another trust is an application of income. But be careful. It is only out of the current income. You cannot donate accumulated income to any other trust. You cannot donate accumulated income to any, whatever 15% you have accumulated or under 11(2) you have accumulated for a period of 5 years. You cannot donate to any other trust. You will have to apply yourself. Whereas current income which you have received can be donated to the another trust. I have absolutely no problem. Current income can be donated to the another trust and it is treated as application of income. Be careful. I am only choosing the point from charitable trust. I am not talking to you run through the last line of charitable trust. Be careful. Out of current income, donation can be made. Out of the accumulated income, including whatever you have accumulated under 11(2), donation cannot be made to the another trust. It will never be treated as an application of income. आपके पास कोई पॉइंट है तो आप साथ साथ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब खत्म होगा तब तक आप भूल जाएंगे कि क्या मैंने इशू यूज किया था. आई हैव नो प्रॉब्लम इन रिप्लाइंग योर क्वेश्चन इफ यू हैव. यस प्लीज बोलिए. वो तो ऑब्वियस है. अगर वो रजिस्टर्ड 12AA में नहीं है या 1023 से भी नहीं है तो वैसे ही है, वो एप्लीकेशन नहीं माना जाता. वो तो माना ही नहीं जाता. रजिस्टर्ड होना तो जरूरी है. और फिर एक और बता दिया मैंने, कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते. करंट इनकम में भी कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते. ओनली डोनेशन फॉर एप्लीकेशन. कॉर्पस भी बंद कर दिए. बट यू कैन डू ओनली टू ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट, देन ओनली इट इज ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन. You cannot do it to unregistered trust for an application. No question. वो तो मतलब ही नहीं.
है जी, रिलीजियस हो या चैरिटेबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में बताऊंगा कि अगर वो प्योरली चैरिटेबल पर्पस है, देन इनकम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट और क्रीड, वो तो वहां पर पकड़ा जाएगा। तो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो 5% एक्टिविटी कर सकता है, ओनली फॉर रिलीजियस एक्टिविटी, अदर्स ही कैन नॉट डू। वो कर ही नहीं सकता रिलीजियस एक्टिविटी, वो तो बात ही अलग हो जाएगी। यस सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे गिना, सारों की बात करें, सब में 15% की बात हो रही है। और भी तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल है, मेडिकल है, अदर है। आपको ग्रॉस रिसीट का 15% लेना है कि किसका? उसमें लिखा है 15% ऑफ द इनकम सो एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट। एम आई राइट? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनकम? यही पूछना चाहते हैं। 15% ग्रॉस रिसीट्स का लेना है कि 15% नेट इनकम का लेना है? पहले मुझे बताइए इनकम होती क्या है? इस ग्रॉस रिसीट एंड इनकम, इस ग्रॉस रिसीट एंड इनकम, हमें अभी तक यह कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। हमें मतलब इंक्लूडिंग मी, ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ी चीज हो गया हूं, निकाल गया वो अलग बात है। यहां बोलना आसान है, जब करना पड़ता है तो पता लगता है कि क्या काम है इसका। बात है वर्ड इनकम है, रिसीट नहीं है। इनकम मीन्स ऑल एक्सपेंडिचर विच हैव बीन इनकर्ड इन अर्निंग दैट इनकम, इन अर्निंग दैट रिसीट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग दैट रिसीट, वो लेस होता है इनकम पे। एंड इट इज टू बी कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स और व्हाट law is, it is to be computed in commercial sense, not as per income tax. आप एक हाउस प्रॉपर्टी आया, क्या आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे? वो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे जब वो इनकम टैक्सेबल होने वाली है। लेकिन अगर मैं उसको इनकम को एग्जेम्प्ट करने जा रहा हूं सेक्शन 11 में, तो ग्रॉस रिसीट रेंट लेना है इन कमर्शियल सेंस, वहां 30% डिडक्शन मिलती है। ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग दैट रेंट। एक स्कूल है, कॉलेज है, जो आप बात कर रहे थे, ट्यूशन फी पे कर रहा है, टीचर्स को सैलरी दे रहा है, क्या ये एप्लीकेशन है कि ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड है इन अर्निंग दैट इनकम? करेक्ट, करेक्ट, ये एक्सपेंडिचर है इन अर्निंग दैट इनकम, इट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लेकिन हमारे यहां तो 15% ग्रॉस रिसीट का लेते हैं और 90% लेकर, और 90% लोग यही कर रहे हैं और उसका एग्जेम्पशन दे रहे हैं। मेरे हिसाब से वो गलत है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया। आप देखिए जरा, आपने फिर ITR 7 अभी ध्यान से भी देखा नया वाला, उसमें उन्होंने पहले उसको कहा है कि उसमें से कितना खर्च किया वो दिखाइए, फिर एप्लीकेशन किया कितना दिखाइए, जो नहीं हुआ उसको इनकम टैक्स में लाइए। मैं वेट करिए ITR 7 और ITR 7 फिर री होगा है, तो उसमें गलतियां बहुत है। मैं एक बार पहले आपको बता दूं, इनकम ग्रॉस रिसीट नहीं होती। अब तो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट भी है, अगर आप पढ़िए वहां लिखा हुआ है, इट इज 15% ऑफ द नेट एंड नॉट द ग्रॉस 15%। आपने कंप्यूटर खरीदा, वो अर्निंग वो नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग दैट इनकम नहीं है। आपको क्या कह रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जितनी ट्यूशन फी आती है, जितनी क्रेडिट में रिसीट आती है, उसका 15% ले लेते हैं। सर मैं शुरू में कहना भूल गया, नोट ऑफ वार्निंग, मेरी बात सुन जरूर लेना, करना वही जो आप कर रहे हैं। मैं भूल गया, मैंने नोट ऑफ वार्निंग की नहीं शुरू में, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक ने शुरू कर दिया मेरी बात को सुनकर, तो बाकी मारे जाएंगे। हमें तो फिर भी कुछ पता है, उनको तो कुछ भी नहीं पता, इसलिए बी केयरफुल। मैं वार्निंग दे रहा हूं कि 90% लोग ग्रॉस रिसीट को ही इनकम देंगे और उसका 15% देंगे। लॉजिकली वो रॉन्ग है, लॉजिकली वो रॉन्ग है। 15%, अब एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आया, डोनेशन आया, उसका तो पूरा 15% लेना है, उसका तो खर्चा कोई होता ही नहीं है। When the word is voluntary contribution, is there any expense to receive that donation? Is there any expense to receive that donation? No. So that's why voluntary contribution का 15% आप स्टेट अवे ले सकते हैं, लेकिन ट्यूशन फी का 15% लेना बिल्कुल
गलत है, उसके एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग दैट इनकम शुड बी रिड्यूस बिफोर कैलकुलेट 15%। अब आप मेरी समझ रहे हैं, लॉजिक को समझ रहे हैं मैंने क्या कह रहा हूं? क्या वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो डोनेशन आता है उसका कोई खर्च होता है? एक रसीद छुपाते हैं और क्या करते हैं, या गुल्लक में वो डाल जाता है तो खर्च तो कोई नहीं, उसका 15% ग्रॉस का ले सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी इनकम है खर्चा निकाल कर, अब इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपकी एफडीआर से, क्या खर्चा किया आपने उसको अर्न करने के लिए? कुछ भी तो नहीं किया, उसका आप 15% ले सकते हैं। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है तो क्या उसका 15% ले सकते हैं? नो, रेंट में से ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग दैट रेंट वो करके उसके बाद 15% लेना है। आपकी एजुकेशन है उसके खर्चे निकाल के फिर 15% लेना है, लेकिन आप 15% ग्रॉस का लेते रहिए। बात समझ में आया? मुझे मत कहना कुछ भी, लेकिन है गलत, है गलत, क्योंकि मुझे पता है क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें है। आर यू कन्विंस्ड और यू आर नॉट कन्विंस्ड? ये बताओ, आपने ये सवाल पूछा तो दिमाग में डाउट है कि नहीं? बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाकियों को मरवा देते हैं। हाँ जी, चलिए। ले सकते हैं 15% ले सकने का मतलब दोबारा बोलिए। आपने कहा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर आता है तो उसका तो 15% ले सकते पूरे का। मैंने बोला वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो 15% तो आप सबका ले सकते हैं। मैंने कब कहा है? इनकम का। इज डोनेशन नॉट एन इनकम? डोनेशन इनकम है कि नहीं है ये बताइए। सेक्शन 2 क्लॉज 24A कहता है, 3IA कहता है कि डोनेशन इज एन इनकम। आपने उसको इनकम मान लिया और वो इनकम मान लिया, उसके अगेंस्ट कोई खर्चा नहीं है, वो तो एप्लीकेशन होगा, तो उसका 15% तो आपको स्टेट में अलाउड है टू बी एक्यूमुलेटेड, और वो मिलता है, उसको तो मिलता है आपको, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। वो 15% मिलेगा, उसके ऊपर ग्रॉस रिसीट का मिलेगा, लेकिन बाकियों का नेट रिसीट का मिलना चाहिए। मैं ये कह सर, हाँ, what will be implication if any charitable or religious trust? तो मुझे तो उधर नजर आती तो मेरे वहां सिंक्रोनाइज वहां नहीं। Sir, what will be implication if any charitable or religious trust receive loans from trustee or any other institution? आपको बताता मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको जरा समझिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कॉलेज बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी करना है। आई बोरो मनी 5 करोड़, I have 2 crores with me. I borrow money 5 crores, 7 crores, and I constructed a building. 5 crore borrowed from bank or wherever institution, whichever are there, and 2 crores I have. वो ट्रस्टी के बारे में बाद में बताता हूँ। 2 crore I had with me in the trust. 7 करोड़ लगा दिया और एसेट बना ली। बताइए, या बिल्डिंग खरीद ली, इसमें एप्लीकेशन कितना मांगा? देखिए, मैं दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं आपस में डोंट वरी, गलत और सही और जवाब मिलना चाहिए। मुझे भी नहीं आता था, सीखा है। 2 करोड़ रुपया आपके पास था फंड्स, 5 करोड़ रुपया आपने बोरो किया, 7 करोड़ रुपया आपने बिल्डिंग खरीदी। हाउ मच इज द एप्लीकेशन ऑफ द करंट ईयर? 2 करोड़, 7 करोड़ के 2 करोड़। अकाउंटेंसी में 7 करोड़, इनकम टैक्स में 2 करोड़। जब बैलेंस शीट बनाएंगे 7 करोड़ की एसेट दिखाएंगे, एम आई राइट? 7 करोड़ की एसेट दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या, वो लायबिलिटी साइड में क्या रखेंगे? वो फंड्स जो आपके पास थे, और 5 करोड़ रुपया लोन दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में तो एसेट 7 करोड़ की जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन में एसेट 2 करोड़ की जाएगी। आप ये कैसे हो सकता है? रीपेमेंट ऑफ ए लोन will be treated as application। जो 5 करोड़ की आप रीपेमेंट करेंगे आगे सालों में, अगले साल आपने उसमें से 1 करोड़ रुपया वापस कर दिया, वो एप्लीकेशन माना जाएगा। वो उससे अगले साल आपने 50 लाख वापस कर दिया और इंटरेस्ट भी दिया, वो एप्लीकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगर 1 करोड़ और फर्दर लोन लिया तो वो भी नहीं है। लोन ले रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो लोन इज नॉट एन इनकम। इज लोन एन इनकम? इज लोन एन इनकम? लोन तो रीपेमेंट होना है, सो लोन कभी भी इनकम नहीं होती है। रीपेमेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज एन एप्लीकेशन। प्लीज, रीपेमेंट, जन्मभूमि ट्रस्ट करके जजमेंट है 242 ITR, और गोविंद एक्रो की जजमेंट है कि मैं रीपेमेंट ऑफ ए लोन is an application।
including interest we have given. But loan taken is not an income at all. अकाउंटेंसी कुछ और कह रही है कि एसेट आप डेबिट करोगे 7 करोड़ की, इनकम टैक्स कह रहा है कि 2 करोड़ की एसेट की एप्लीकेशन मानोगे, बाकी 5 करोड़ तब मानोगे जब आप लोन रीपे करते रहोगे, उसको एप्लीकेशन मानेंगे, उसको एप्लीकेशन मानेंगे। अगले साल 1 करोड़ दिया, 1 करोड़ एप्लीकेशन, साल में 15 लाख इंटरेस्ट दिया, साल में 15 लाख भी एप्लीकेशन। That is the question which I am saying to you, because loan is not an income. Loan is only a receipt which you have received to repay back. When repayment of loan is done, that is treated as an application of loan. ये क्लियर हुआ सर? कोई डाउट हो तो पूछिए। सर बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं मेरे पास, और मुझे डर भी लगता है। एक योद्धा ये बैठे हुए हैं, तब झावर साहब और संजय झावर साहब, एक ओपी और बैठे हुए हैं, ये है। मेरे से एग्री करें तो जरूर करें, नहीं करें तो जरूर मुझे क्रिटिसाइज करें या मुझे कन्विंस करें कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं आई विल वेलकम। देखिए आदमी जो भी सीखता है ना। What about amount spent out of corpus? है जी, What about amount spent out of corpus? you do it, go for it, 7 lakh rupees was spent. you spend out of your corpus, you do it. We don't want you to spend, you want you to spend it, I have no problem. Is it application? No. सर देखिए, आपने एलोकेट कर दिया कॉर्पस को स्पेंड करना, आप कर दीजिए, बैंक में रखिए, ना करिए, हम उसको ना एप्लीकेशन मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि 11(1) कहता है व्हाटएवर अमाउंट यू हैव रिसीव्ड एज अ कॉर्पोरेट डोनेशन इज फुली एग्जेम्प्ट। अब आप जमा उसको खर्च कर दें, वो एप्लीकेशन नहीं है उसका, वो तो एग्जेम्प्ट है ही है। हम उसको एप्लीकेशन साइड में नहीं डालेंगे, हम तो उसको कहेंगे जो कॉर्पस नहीं है उसको अप्लाई करना है 85%। मेरी बात को समझिए, आपके पास कॉर्पस डोनेशन 5 करोड़ आया, आपने एसेट ले लो, आपने उसको बैंक में रखा, रख लो, आपने कुछ किया कर लो, हम उसको एप्लीकेशन नहीं मांगे, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन हम मांग ही नहीं रहे आपसे। हम तो मांग रहे हैं जो दूसरी इनकम आई है, हैव यू अप्लाइड दैट और नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ 85% प्लस 15% एक्यूमुलेटेड। अगर 85% नहीं खर्च कर सके तो 11(2) में फॉर्म 10 भर दो, ये तो बोला है। लेकिन वो इनकम नहीं है सर, वो इनकम ही नहीं है तो एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं। वो इनकम होगी तो ही तो एप्लीकेशन करेंगे, ये मैं कह रहा हूं। सर मेरा कुछ कोई जवाब दो सर, ये जावर साहब, तो मैं ठीक कह रहा हूँ कि कुछ आपका डिफरेंस ऑफ व्यू है तो जरूर बोलिए सर, क्योंकि केस ये लड़ते हैं, मैं तो पढ़ाता ही हूँ। बताइए सर, कुछ डाउट है तो लेट अस थ्रेश करेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन सर? हाँ बोलिए। मैंने प्रकाश जी से परमिशन नहीं दी, is it okay if I take the questions simultaneously? But I have issues which I have to discuss. I have not to discuss the topic. You give me the time. What time up to what time? Do I have sufficient time, sir? I will cover each and everything. Unless satisfied, I will not leave. Don't worry. चलिए सर। है जी? माइक चल आवाज नहीं आ रही, अगर इनको माइक देंगे तो बहुत अच्छा होगा, वाक्यों को भी समझ में आएगा क्या पूछ रहे हैं। 1023C में मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर इंस्टीट्यूशंस की गवर्नमेंट ग्रांट भी नहीं है, रिसीप्ट 1 करोड़ से ऊपर हो तो दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ सेक्शन 11-12। तो क्या डीम्ड एप्लीकेशन उस केस में लग जाए? प्लीज How can they take the exemption of 11 and 12 without registration under 12AA? दो चीजों को मिक्स कर रहे। प्लीज जरा आप ध्यान से सुनिए, यही कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिए। 12AA में रजिस्ट्रेशन है, 1023C में अप्रूवल है। और कब है अप्रूवल? पहले 1023C सुन लो। सेक्शन है 1023C सब क्लॉज, सेक्शन 10 क्लॉज 23C, सब क्लॉज 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE, 4-5 को बाद में करता हूं, सब क्लॉज VI एंड VIA। जरा ध्यान से सुनना सर, मुश्किल नहीं है, सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए मैं क्लॉजेस बोल रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिए, आपको सबको आता है, नाम सेक्शन याद नहीं रहा तो क्या लिखता है। इन सेक्शन 1023C 3IAB क्या कह रहा है? इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी फॉर विच इज नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इज
exempt. Is exempt provided it is substantially, wholly or substantially financed by the government. बार बार क्या बोल रहा हूं, अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है substantially or wholly financed by the government and imparting education, उसकी इनकम बिल्कुल exempt है, उसकी इनकम exempt है. wholly और substantially का लिखा है more than 50% funds grant is coming from government, तो उसकी इनकम exempt है. लेकिन रुकिए, उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. रुकिए, उसका वो 15% की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन और 85%. बट रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन दैट केस ऑल्सो, विच वॉज नॉट देयर एट पर्टिकुलर टाइम. आजकल सारी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मे बी फंडेड बाय होली बाय द गवर्नमेंट और सब्सटेंशियली बाय द गवर्नमेंट, ऑल्दो देयर इनकम इज exempt, बट दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)(c). They are required to file return of income under section 139(4)(c). उनको रिटर्न भरना है. इसी तरह मेडिकल इंस्टीट्यूशन wholly financed or substantially financed by the government, income totally exempt है without any condition, but return is mandatory. ये मैंने 3IAB और 3IAC कर दिया, funded by the government substantially or wholly, but return. Now 3IAD and 3IAE. Income of an educational institution or a university not for imparting education, not for charitable, for wholly for charitable purposes, whose gross receipt does not exceed 1 crore. और यही मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए 3IAE है, जिसकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रॉस रिसीट्स नहीं है. सुन लीजिए, इस केस में इनकम माफ है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन रिटर्न इसके लिए भी कंपल्सरी है. ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ऊपर है. अब आपकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ऊपर है, आप 6 में आएंगे या 6A. अब आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव हैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास, इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन. ये चाहे तो 12AA में रजिस्ट्रेशन करें, वो अप्लाई करें एंड 12AA में रजिस्ट्रेशन करें. दे हैव टू अप्लाई बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, relevant previous year, and they can get a registration within 6 months from the end of the month in which application is made. ये वो अप्लाई करते हैं. एक ऑल्टरनेटिव. दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो फॉर्म 56D में अप्लाई करें टू दी ये जो एग्जेम्पशन का कमिश्नरेट है उसमें, और अप्रूवल, वहाँ अप्रूवल है, यहाँ रजिस्ट्रेशन है. वो अप्रूवल देगा दैट एप्लीकेशन हैज टू मेड बिफोर 30th of September फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट प्रीवियस ईयर. देखिए, यहाँ एग्जेम्पशन है, यहाँ रजिस्ट्रेशन है, यहाँ 1 करोड़ से ऊपर वालों को या तो 12AA में जाना पड़ेगा या 1023C में जाना पड़ेगा. पर एक में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म 10A में, एंड यू गेट रजिस्ट्रेशन विद इन 6 months. एक में अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म 56D में, एंड इट इज कॉल्ड अप्रूवल नॉट रजिस्ट्रेशन. इन दोनों में से कईयों को दोनों कईयों के पास, अगर उनके पास दोनों हैं, उनकी चॉइस है, तो 11-12 का एग्जामिशन लेने जाता है तो वहाँ चले जाएं और रेफरेंस दे दे रजिस्टर्ड अंडर 12AA. अगर वो चाहते हैं तो 1023C का लिख दे, तो रेफरेंस दे दे अप्रूव्ड अंडर 1023C. जब आप रिटर्न करते हैं तो वहाँ लिखते हैं वेदर रजिस्टर्ड और नॉट और अप्रूव्ड, और वहाँ लिख दे. ये वहाँ पर चॉइस है. ये पहले अगर चॉइस आपने कर ली, अगर आप 1023C में जाएंगे तो वहाँ कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है. आप 1023C में जाएंगे तो वो जो डीम्ड एप्लीकेशन है कि आई विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर और आई विल एक्यूमुलेट इट फॉर आई विल स्पेंड इट इन द ईयर इन विच आई रिसीव और ईयर आफ्टर, वो नहीं कर सकते 1023C वाले, वो ये कर सकते. बाकी 15% सेम है, चाहे आप 11-12 में जाए या आप 1023C.
वहां 15% वो भी वहां माफ है, वो भी माफ है। 15 से ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, प्रोसीजर सेम है, वहां भी फॉर्म 10 भरना पड़ता है और यहां भी फॉर्म 10 भरना पड़ता है। यू कैन दोनों चांस है, लेकिन मैंने आपको बोलिया आपको चूज करना है कि आप 1023C में जाएंगे तो कॉर्पस डोनेशन को स्पेंड करना पड़ेगा, आप 1023C में जाएंगे तो डीम्ड एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर आप 11-12 में जाएंगे तो वो दोनों होगा। लेकिन एक और फर्क है 1023C और 11-12 में। 11-12 की रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A में जाती है, 1023C की रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)C में जाती है। आप कहेंगे फर्क क्या है इसमें? रिटर्न तो रिटर्न ही है, तो उसमें फर्क क्या है 4C में जाना और 4A में जाना? सुन लीजिए, when you make a return under 139(4)A, आप 12AA में रजिस्टर्ड है, उस केस में AO may not give you exemption if he finds that you are not carrying out the object of the trust or you have misused the funds or anything. AO डिसाइड करेगा कि आपको 11-12 की एग्जेम्पशन देनी है कि नहीं। वो कर सकता है उस साल के लिए, इवन इफ रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड और नॉट, वो कर सकता है। लेकिन रुकिए, 1023C में एक प्रोवाइजो रखा हुआ है 143(3) में। वो प्रोवाइजो कहता है if the AO is not satisfied, if we feel that the objects are not carried on or you are not misuse the funds, and also AO आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता एग्जेम्पशन के लिए। He will have to refer the case to the authority who has granted the approval to tell them that their approval may be withdrawn. वो अथॉरिटी को लिखेगा, अगर अथॉरिटी अप्रूवल विड्रॉ कर लेती है तो ये एग्जेम्पशन नहीं देगा, और अथॉरिटी उसकी अप्रूवल विड्रॉ नहीं करेगी तो AO को एग्जेम्पशन देनी ही पड़ेगी। सर ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, आपको ये क्लियर हुआ कि डिफरेंस क्या है? एग्जेम्पशन दोनों में है, एक में AO एग्जेम्पशन डिनाई कर सकता है, दूसरे में AO विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी डिनाई करेगा, आप नहीं कर सकता। ये दोनों का डिफरेंस है, बाकी चीजें उसमें सभी सिमिलर है। क्लियर सर? ये जो किसी ने सवाल पूछा था, क्लियर? इज इट क्लियर? एनी अदर सर? यस सर। ठीक। फिर वही बात सर, लोन इनकम नॉट एन इनकम, वो रिसीट में नहीं आता, नहीं आता, वो तो है ही नहीं इनकम। रिसीट्स ऑफ दी जो आपकी टैक्सेबल रिसीट वो देखते हैं ना, जो इनकम, लोन इज नेवर एन इनकम। इनकम को एग्जेम्प्ट करना है ना आपने एग्जेम्प्ट किसको करना है? ग्रॉस रिसीट को, है जी? इट इज नॉट एन इनकम, इट इज नॉट ए ग्रॉस रिसीट, लोन इज नॉट एन ग्रॉस रिसीट। नो ग्रॉस रिसीट नहीं आता, वो तो रिपेबल है। लोन इज नेवर इंक्लूडेड इन दैट, ऑल अदर काइंड्स ऑफ रिसीट इंक्लूडेड, बट लोन इज नॉट एन रिसीट ऑफ विच इज इक्विवेलेंट टू इनकम। नो, वो नहीं आएगा सर, लोन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर यदि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई कैपिटल एसेट डोनेट करता है तो कर ही नहीं सकता, करंट इनकम की कर सकता है, एक्यूमुलेटेड इनकम तो डोनेट हो ही नहीं सकती जब तक डिसोल्यूशन ना हो। आप ट्रस्ट को बंद करने जा रहे हैं, देन यू हैव टू डोनेट टू अदर ट्रस्ट, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डोनेट एक्यूमुलेटेड इनकम। करंट इनकम की लेकर आपने वो खरीद लिया है तो डोनेट कर लीजिए उसी करंट इनकम का एसेट, लेकिन पुरानी इनकम का एसेट नहीं डोनेट कर सकते। लेकिन वो जैसे लिटिगेशन वाला पार्ट है, लिटिगेशन से कोर्ट में केस सेटल हुआ है, उनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है और उसके हिसाब से वो उनको मतलब ट्रांसफर करनी है, वेदर इट इज ए ट्रांसफर और डोनेशन। कोर्ट ऑर्डर पर मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग यू लॉ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डिपेंड्स कि उसमें क्या लिखा है। मैं अभी ले लूं कि उस कोर्ट में क्या ऑर्डर उन्होंने लिखा है कि आपकी एसेट ही नहीं थी, ये तो उनकी थी, या क्या वो डिस्प्यूट का मुझे पता नहीं ना, वो डिस्प्यूट क्या चीज का है। मुझे तो ये पता है कि पहले अलाउड था आप एक्यूमुलेटेड इनकम को डोनेट कर सकते थे, अब आप जो 15% एक्यूमुलेट किया है या जो 11(2) में एक्यूमुलेट किया है उसको डोनेट नहीं कर सकते, सिर्फ करंट इनकम को डोनेट कर सकते हैं। हाँ, करंट इनकम से कोई एसेट खरीदी उसको डोनेट करना चाहते हैं जरूर कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ओल्ड एसेट्स नहीं, एक्यूमुलेटेड एसेट्स नहीं कर सकते। करेंगे तो वो एप्लीकेशन माना नहीं जाए। ये क्लियर
मैं इशू जो ले रहा हूँ बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं सर, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन इश्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैंने लास्ट में रखा हुआ है, पहले और पूछ लीजिए जो है, मैं उस इशू को डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। है जी 1045 यहाँ कहाँ से आ गया सर? चैरिटेबल ट्रस्ट में 1045 का सेक्शन है? मैंने 45 का सेक्शन नहीं कहा सर। है जी 1023C में कहा था सर। अप्रूवल आपको 1023C के लिए लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन आपको 12AA में लेनी है। 45 तो मैंने यूज ही नहीं किया सर, मैं कोई 45 नहीं करता, सो सेक्शन 1045 नहीं। एनी अदर सर, एनी अदर? एक तो मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। एनी अदर? Excess application of 1 year can be treated as an application of next year. Very good point he has raised. और गलती से फॉर्म नंबर 7 में कहीं नहीं लिखा हुआ, यहाँ प्रॉब्लम हमें आती है। हुआ क्या सर, 3 करोड़ की इनकम आई, इस साल मैंने 4 करोड़ खर्च कर दिया। कहां से खर्च कर दिया होगा? देखो पड़ेगा ना पैसे, वही तो करें। 3 का 4 करोड़ कर, ये एक्सेस एप्लीकेशन हो गया। हालांकि मुझे तो 85% करना था, चलो 80 नहीं, मैंने 100 भी कर दिया, उससे ऊपर कर दिया। पहले बताओ एक्सेस एप्लीकेशन कितना माना गया? 3 करोड़ की रिसीट है, 4 करोड़ करा, एक्सेस क्या माना गया? 1 करोड़ के 3% का 15% लेस करके 245 के 4 करोड़ का डिफरेंस 1 करोड़ 55 लाख। वाह सर, आप तो मजा लेना चाहते हैं। अगर 3 आया 3 खर्च कर दिया, आपकी मर्जी है। हम तो कहते थे 85 भी कर दोगे तो माफ कर दोगे, आपने 3 कर दिया, वो खत्म। एक्सेस 1 करोड़। ऐसा नहीं है कि 3 का पहले 15%, 45% को तो 45 माफ कर दो, बाकी 255 बचा, 255 और 4 लाख का डिफरेंस 145 लाख ना, वो 1 करोड़ एक्सेस है। कैन इट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन द नेक्स्ट ईयर? ये पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं सर। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट 164 ITR की जजमेंट है कि इट कैन बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। CIT वर्सेस माते सेवा ट्रस्ट की जजमेंट है 242 ITR, इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन की जजमेंट है, इट कैन बी यूज्ड एज गुजराती समाज की जजमेंट है, इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। लेकिन जजमेंट ही है, फॉर्म में लिखा था, हम उसको फिर नोट करके ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम इसको एप्लीकेशन माने। इस बारी हम फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी मान लिया जाए कि ये एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर मानी जाए। ये नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन मानी जा सकती है। एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ 1 ईयर कैन बी टेकन एज द एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये जजमेंट्स मैंने बताई, बाकी ये अलाउड है लॉजिकली अंडर द लॉज, नॉट एज पर द इनकम टैक्स। Sir, हाँ, the trust registered under section 12AA having agriculture income. Whether that agriculture income has to be applied? सर लेट आए क्या? सर कौन से वाले थे? जरा मुझे हंगारा कर दे प्लीज। आप लेट आए क्योंकि मैंने शुरू में यही बताया था 10(1) की सेक्शन 10 क्लॉज 1 की इनकम को अप्लाई करना जरूरी नहीं है, ये लॉ ने बता दिया है। लेकिन बाकी सेक्शन 10 की कोई भी इनकम एग्जम्प्ट हो, उसका एप्लीकेशन उसी तरीके से करा जाएगा जैसे बाकी इनकम का किया जाता है। ये क्लियर हो गया सर? ये मैंने शुरू में बताया था 10(1) एग्रीकल्चर इनकम विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। यू नीड नॉट स्पेंड दैट इनकम, यू नीड नॉट अप्लाई दैट इनकम, बट एनी अदर इनकम विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 will not be treated as an application. You will have to apply to claim exemption of that income under charitable trust. Clear हुआ सर? और कोई ऐसा नहीं तो मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ सर, अगर एक इंस्टीट्यूशन है जो 12A में रजिस्टर्ड है, जो रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहा है, उसके साथ ही वो एक स्कूल भी ओपन करता है जो 1023C3AD में कवर्ड है, तो अगर वो स्कूल के लिए 1023C3AD लेना चाहे और अपनी एक्टिविटीज के लिए 12 लेने चाहे, वो कर सकते। चार्टर अलग होगा तो हो सकता है, चार्टर अलग होना चाहिए, मतलब उसके भी लॉज अलग होने चाहिए। होता क्या है सर, एक अम्ब्रेला है, 1 इंस्टीट्यूशन, 2 इंस्टीट्यूशन, 3 इंस्टीट्यूशन, 4 इंस्टीट्यूशन, 5 इंस्टीट्यूशन, एक ट्रस्ट है। आप पांचों को इकट्ठा एग्जेम्पशन दे सकते हैं, अकाउंट्स कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रस्ट है, उसके 5 इंस्टीट्यूशन है,
और पांचों का अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लें, सेपरेट पैन नंबर ले लें, तो सबका 1-1 करोड़ अलग हो सकता है। क्या आप अम्ब्रेला का पॉइंट मेरा समझे? सबका 1-1 करोड़ अलग हो सकता है, बट अदरवाइज टोटल एग्रीगेट होता है। सो यू नीड टू हैव सेपरेट पैन नंबर, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन गेट द बेनिफिट फॉर ईच इनिशिएशन सेपरेट 1 करोड़, ईच इंश्योरेंस सेपरेट 1 करोड़। क्लियर हुआ सर ये पॉइंट? सर इसी में अगर 1023C की हम एप्लीकेशन मतलब एग्जम्पशन लेना चाह रहे हैं तो हमें कोई अप्रूवल लेनी पड़ेगी? मैंने आपको बताया ना, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। देखिए पहले मैं एक चीज और बता दूं, सबसे गलती क्यों हो रही है। मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज 15 चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन नहीं किया है। चैरिटेबल पर्पस डिफाइन है, रिलीजियस पर्पस डिफाइन नहीं है। वहां सेक्शन 2 क्लॉज 15 में चैरिटेबल पर्पस का मीनिंग है। चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स नंबर 1 रिलीफ टू द पुअर, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 योगा, नंबर 4 मेडिकल रिलीफ, नंबर 5 preservation of environment, preservation environment including watershed, what you call wildlife or forest, and preservation of any monument or any other place of historic or artistic importance, and advancement of any other object of general public utility. ये चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन है पहले से। आपने नोटिस किया कि 215 में एजुकेशन वर्ड आ रहा है, 215 में मेडिकल वर्ड आ रहा है, बाकी अलग है। ये एजुकेशन वर्ड और मेडिकल 1023C में भी आ रहा है, दोनों में है मेडिकल वाला। मेरा पॉइंट ये कहने का है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको 1023C में जाना है कि 11-12 में जाना है। कुछ डेफिशिएंसीज मैंने बता दी 1023C की है। नंबर 1 कि आपको डीम्ड एप्लीकेशन नहीं माना जाता, नंबर 2 कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है। कुछ एडवांटेज बता दिए, 1 करोड़ से नीचे हैं तो 1023C में जाइए, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, फंडेड बाय गवर्नमेंट है। 1023C में जाइए, कोई अप्रूवल नहीं है, सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम है। ये तो चॉइस आपको करनी है कि किस में जाना है। लेकिन पुराने लोग दोनों में बैठे हुए हैं, दोनों में ले हुए, तो उनको चॉइस है कि वो इधर जाए या उधर जाए, हर साल अपनी चॉइस को बदल नहीं सकते। ये पॉइंट पहले। सो मैंने ये बोला कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको अपना देखना है कि वो 1023 में एडवांटेज सिर्फ यही है कि वो अप्रूवल है और असेसिंग ऑफिसर आपको डिनाई नहीं कर सकता। एग्जेम्पशन करनी है तो पहले ऊपर की परमिशन लेगा, वहाँ रेफर करेगा, तभी आपको डिनाई करेगा। 11 में वो खुद ही डिनाई कर सकता है। ये इश्यूज है और बाकी मैंने आपको बता दिया। ये चीजें हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उस 1046 यहाँ कहाँ से आ गया चैरिटेबल का? 46 सेक्शन क्या है जरा आप मेरे को बताइए, फिर मैं बताता हूँ। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स, स्पेसिफाइड, उसको यहाँ से कहाँ ले आए आप? सर उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 36 और उसके साथ आपको देखना पड़ेगा उसको खर्चे अलाउड है। अब आप ले गए आपको 1046 में जो नोटिफाइड अथॉरिटीज हैं अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, उसको यहाँ नहीं लाते, वो इसमें नहीं है, वो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। ये तो बहुत पुरानी जजमेंट आ गई कि जितनी भी अथॉरिटीज थी, नोएडा अथॉरिटीज, ये अथॉरिटीज, ये पहले एग्जेम्पशन लेती थी। क्या हुआ था, इनको पहले ये लोकल अथॉरिटी मानी जाती। अब इनको बताता हूँ, आप जो हिस्ट्री सुनिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेक्शन है 1020, इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटीज एग्जेम्प्ट, इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटीज एग्जेम्प्ट। पहले लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन नहीं होती थी, तो जितने भी हाउसिंग है जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए, नोएडा अथॉरिटी और ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सारे लोग 1020 में अपने आप को लोकल अथॉरिटी लेकर एग्जेम्पशन लेते थे। ये तो जमाना था टोटल इनकम एग्जेम्प्ट थी, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिटर्न नहीं। एक दिन सडनली 10 उसमें लिख दिया 1020 में डिफाइन कर दिया कि लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन में लिख दिया पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज है, टाउन एरिया कमेटी है, उसमें ये हटा दिया गया। जब ये हटा दिया गया तो इनकी इनकम टैक्सेबल हो गई। जब इनकी इनकम टैक्सेबल हो गई तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझदार लोग तो सबसे बड़े हम लोग ही,
उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि आप चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन ले लो, आपका काम है चैरिटी करना, और एडवांसमेंट उस वक्त एडवांसमेंट जनरल कम्युनिटी को भी अलाउड था, आप बोले। उन्होंने वहां रजिस्ट्रेशन ले ली, उनको वहां पर डिनाई कर दिया गया, पर फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि इनको रजिस्ट्रेशन देंगे, चैरिटेबल हैं, और उनको एग्जेम्पशन मिलनी शुरू। और उन्होंने सेक्शन 1020 एग्जेम्पशन ले ली, 11-12 में एग्जेम्पशन ली। फिर लॉ बदला गया, उनके लिए 1046 ले आए और उनको कहा कि ये जो अथॉरिटीज है ये चैरिटेबल में नहीं जाएंगी, इनको नोटिफाई करना पड़ेगा, और नोटिफाई गवर्नमेंट कर देगी तो इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, नोटिफाई नहीं करेगी तो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं। इन्होंने क्या करा, बीच में एक और गड़बड़ करनी शुरू कर दी। ये जो अथॉरिटी होती थी वो कुछ चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट को देती थी, किसी नाम से फीस ये करके स्टेट गवर्नमेंट को देती थी, और स्टेट गवर्नमेंट को जो दे दो वो फिर वो कहता स्टेट गवर्नमेंट की इनकम ही है, हमारा खर्चा है, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो सर वो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है, वो दे आर नॉट कवर्ड अंडर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। 1046 इज इंटायरली डिफरेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद 11-12 और 1023C। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? चलिए जी 9A सर डीम्ड एप्लीकेशन हो चुका है ना सर, क्या बात कर रहे हैं सर? इट हैज बीन ट्रीटेड एज डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ दैट ईयर। नेक्स्ट ईयर में ये एप्लीकेशन नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर तो स्पेंड करना है। सर ये तो पिछले साल का खर्चा दोबारा थोड़ी माना जाएगा। वंस यू हैव ऑलरेडी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ द अर्लियर ईयर, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। है सर, है सर, है सर, है। आप सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि डी 11(1)B क्या कहता है कि जो आपने कर लिया अगर वो नहीं स्पेंड किया इतने टाइम में तो उस साल की इनकम मानी जाएगी। तो वहां वर्ड लिखा हुआ है 11(1)B। 11(1)B पढ़िए, आपको क्लियर हो जाए। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ मेरे को दे दिया, और सुबह सुबह अभी लॉ घर से आए नहीं और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, लोग कहेंगे कहाँ पागल बना रहे हैं सर। मैं कुछ पागल नहीं बना रहा, मैंने शुरू में ही कह दिया था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ सर। हाँ जी साहब, आपने बोला एक ट्रस्ट 2 स्कूल चला रहा और दोनों के अलग अलग पैन नंबर ले सकते हैं, तो क्या फिर वो 3 रिटर्न भरेंगे, ट्रस्ट का अलग, स्कूल या हाँ अलग करनी पड़ेगी, और तीनों ही सेपरेट एंटिटी माने जाएंगे? बिल्कुल सेपरेट एंटिटी, चार्टर बन जाता है उसका, बिल्कुल बनता है। चले सर आगे। अब खतरनाक पॉइंट सुनिए, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मुझे टाइम बोल दिया गया कि फालतू बात मत करना, तो इसलिए मैं उतनी बात करूँगा। प्रकाश जी मैंने फालतू नहीं करी है, इश्यूज जो थे वही मैंने डिस्कस किया, तो इनमें ही प्रॉब्लम है बेसिकली। नॉर्मल रिटर्न तो सभी भर लेते हैं, इन इशू में नहीं। एक इशू और, अब फारिक साहब भी आ गए, इनके भी क्वेरी हो तो जरूर पूछिए, मैं कोई आई डोंट माइंड। अब आया है 111 TD1 TE एंड सेक्शन 115 TF। मैंने 111 कर दिया गलती से, 115 है। 115 TD, TE एंड TF। 90% लोगों ने सुना ही, दिल से पूछिए सुना है? सबसे खतरनाक सेक्शन ये क्या कह रहा है TD और TD। देखिए ऐसा है, आपने एग्जेम्पशन लेकर एसेट क्रिएट की है, एप्लीकेशन माना, एग्जेम्पशन ली और एसेट क्रिएट कर। अब ये ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, चैरिटेबल नहीं रहना चाहता, वो नॉन चैरिटेबल बनना चाहता है, या ये ट्रस्ट किसी के साथ मर्ज होना चाहता है, या ये ट्रस्ट डिसॉल्व होना चाहता है, तो इन एसेट को क्या लॉ ने कहा, इसको इक्रीटेड इनकम। इक्रीटेड इनकम मीन्स वो एसेट जो पुरानी है, जो आपने एग्जेम्पशन जिसकी क्लेम करी थी बाय सेइंग दैट इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, उस एक्रीटेड इनकम को हम टैक्स कर देंगे इन द ईयर एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। सुनिए वर्डिंग क्या है, वेयर ए ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशन which is registered under 12AA has converted into any other form which is not a form, which is not an entity who can be granted registration under 12AA। आपने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसी और you are merging your charitable institution with another entity, and that entity
is not registered in 12AA and is not carrying on the similar object, or you have dissolved your trust and you have not donated your asset to another charitable trust within 12 months from the end of the month in which it has been dissolved. देखिए सुनिए क्या कह रहा है। एक ट्रस्ट के पास कई एसेट्स बनाई गई, ये एसेट जो बनाई गई वो एग्जेम्प्ट इनकम से बनाई गई, एप्लीकेशन की। अब ये ट्रस्ट डिसॉल्व करना चाहता है, मैं पहले थर्ड ले रहा हूं, डिसॉल्व करना। लॉ कहता है अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो या तो इसके 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ दूसरे रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर, जो 1023C में हो या 12AA में हो, उसको डोनेट कर। यू हैव टू डोनेट। अगर आप डोनेट नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज है करंट वैल्यू लेकर उस पर आपको 30% टैक्स देना। मेरी बात समझिए, जो चैरिटेबल ट्रस्ट आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं, 2 आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मर्ज करने जा रहे हैं, करिए, प्रोवाइडेड वो दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड है और सिमिलर ऑब्जेक्ट। अगर वो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है, उस एंटिटी से रजिस्टर कर रहे हैं, ये उसका सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उसे कहते हैं इक्रीटेड इनकम, होती है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू द एसेट माइनस लायबिलिटी ऑन दैट डे, वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और आपको 30% टैक्स देना प्लस सरचार्ज वगैरह जो भी। ये दूसरा केस है मर्जिंग विद एन एंटिटी which is not an entity covered under similar object, और तीसरा है converted into any other form who is not eligible for registration under 12AA। क्या कहता है, इसको एक्सप्लेन करा है 115 TD3 में। कहता है अगर आपकी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई और अंडर 12AA3 और अंडर 12AA4 बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो ये क्या माना जाएगा, आपकी क्रेडिट इनकम पूरी की पूरी टैक्स लग जाएगी टिल द डेट ये has been done। अगर आपने कन्वर्ट, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए बताते हैं। सेकेंड, आपकी रजिस्टर, आपने कोई नए ऑब्जेक्ट्स अडॉप्ट कर लिए या अंडरटेक कर लिए मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, आपने मॉडिफाई कर दिया, यू हैव टू अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। इफ इट इज नॉट कंफॉर्मिंग टू द कंडीशंस, यू हैव टू अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। और आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया तो सारी क्रेडिट इनकम टैक्सेबल हो गई। अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया और वो रिजेक्ट हो गया तो सारी क्रेडिट इनकम टैक्स। मेरी बात को सुनिए, अगर ट्रस्ट को अगर किसी इंस्टीट्यूशन कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ अ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA3 और 12AA4, तो समझ लीजिए मुसीबत आ गई। जितनी आपके पास एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स है डिटरमिन्ड इन अ मैनर गिवन माइनस द लायबिलिटी, वो टोटल इनकम मान ली जाएगी इन एडिशन टू योर करंट इनकम, और उसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा। पहला पॉइंट, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर कमिश्नर, नो एसएससीएम हैज नो राइट टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। 12AA में वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। 12AA3 में या 12AA4 में, दो ही कंडीशन है। एक, उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करी, आपने कोई नए ऑब्जेक्ट्स अडॉप्ट कर लिए विच इज नॉट कंफॉर्मिंग टू द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, या आपने कोई ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई कर दिया। लॉ कहता है अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करी और पीरियड निकल गया तो उस केस में इनकम मान लें कि सारी एसेट्स माइनस कर दी। आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी और वो रिजेक्ट हो गई तो भी क्या मानी जाएगी, इनकम। अब एक्रीटेड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा 30%। तो बी केयरफुल, अगर आपका ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, गो फॉर अपील, ताकि अपील तक वो नहीं माना जाएगा। अपील हार गए तो फिर वो इनकम मान ली जाएगी। प्लीज, अगर रजिस्ट्रेशन आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो वो माना जाएगा कन्वर्टिंग टू ए फॉर्म विच इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर इतना, ये नहीं माना जाएगा। प्लीज, हम बड़ा लीनियंटली ले रहे हैं, लेकिन 115 TD किसी ने देखा नहीं ध्यान से, उस साल की वो इनकम मानी। या आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं
तो दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कीजिए जो 12AA में रजिस्टर्ड है, नहीं तो आपकी इनकम मान ली जाएगी 12 महीने के बाद, जो है 12 महीने के अंदर करना था, ये तो मानी जाएगी उस सर। तीसरा केस, आपने मर्ज कर दिया है तो चैरिटेबल वाले से ही मर्ज करना जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है, अगर दूसरे से करेंगे तो आपकी इनकम मानी। बी केयरफुल। 115 TD बहुत मुश्किल सेक्शन आया है और उसके कह दिया एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमिन्ड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड माइनस द लायबिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटेड इनकम एंड लायबल टू बी टैक्स एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। 150 TD इंपॉर्टेंट है। टी में तो इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि लेट दोगे तो 1% इंटरेस्ट है, TF में लिखा है SST डीम टू बी डिफॉल्ट, उसको मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। क्रेडिटेड इनकम को लॉ ने टैक्स कर दिया उन चैरिटेबल ट्रस्ट की जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जो मर्ज हो गए या जो डिसॉल्व होने जा रहे हैं। सो बी केयरफुल अबाउट 115 TD सेक्शन विच इज वेरी रेलेवेंट these days। आपकी नज़र उस सेक्शनों पर है, आजकल 11-12 पे नहीं है, उस पर ज़्यादा है। तो टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी वो इनकम, उसमें सिर्फ एग्जाम्पशन ये दे रखी है कि अगर वो 10 एग्रीकल्चर इनकम से एसेट खरीदी थी तो वो वाली छोड़ देगी, या वो एग्जाम्पशन दे रखी है जो रजिस्ट्रेशन से पहले जब आपका टैक्स लगता था उससे एसेट खरीदी तो वो छोड़ देगी। वंस रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड उसके बाद कोई भी एसेट खरीदी है उसकी सबकी इनकम मान ली। ये है सर 115 TD जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास इशू बहुत है, आपके पास क्वेरी है वो पूछिए, इशू तो मैं इतने बता दूंगा कि पूछिए कि कंफ्यूज होकर चले जाएंगे, कहेंगे क्यों टाइम वेस्ट है, समझ में आएगा। मुश्किल है जरा सा चैप्टर, तो बताइए कोई इशू है तो आपके पास, नहीं तो मैं एक और इशू ले लूंगा। बात एनीथिंग यू हैव इन माइंड। यस सर, क्या लिखा है? Voluntary contribution with a specific direction that it will form part of the corpus. Specific direction should come from whom? Donor. लोगों ने रसीदें छुपा रखी हैं, उसके ऊपर लिखा कॉर्पस डोनेशन और जाकर कहते हैं जी ये दे दो। ये कॉर्पस डोनेशन नहीं है। उसको क्या पता देने वाले को कि मैंने ये कॉर्पस के लिए दिया, उसको क्या पता कॉर्पस और नॉन कॉर्पस क्या होता है। अगर आपने रसीदें छुपा रखी है तो जहाँ वर्ड लिखा था कॉर्पस डोनेशन, नीचे उसके साइन कर लीजिए आई एग्री, नहीं तो एक लेटर लीजिए आई हियर बाई गिफ्ट सच एंड सच अमाउंट बाय वे ऑफ ए कॉर्पस डोनेशन, ये लिखना पड़ेगा विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो देखिए हुंडी बना रखी है, हुंडी पे लिख दिया कॉर्पस डोनेशन, लोग आके दान दे देते हैं। ये लॉ कहता है ये कॉर्पस नहीं। There should be a direction coming from donor and not from the donee. Donee can't direct like this. Donee के से मैं एक कॉर्पस के लिए ले रहा हूँ, ये तो डोनर देगा। लेटर लीजिए पॉसिबल है तो उसका नाम डिटेल, अदरवाइज ये कॉर्पस नहीं माना जाएगा। और अब लास्ट में मैं अनोनिमस आ रहा हूँ, अगर उससे पहले कुछ पूछ रहे तो पूछो। I'm coming for anonymous donation, but if you have anything you can ask। हैं जी, लोन अनसिक्योर्ड हो या सिक्योर्ड हो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? सिर्फ एक चीज आपको बता दूं, एप्लीकेशन में द बेनिफिट शुड नॉट एन्योर टू द पर्सन रेफर टू अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। ये मैं पहले बता दूं आप, मैं उन डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं आज स्पेसिफिक इशू ले रहा था जो कॉम्प्लिकेटेड इशू थे, मैंने नॉर्मल इशू नहीं दी। आप किसी को भी एन्योर नहीं होना चाहिए पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 13(3). अगर उसके लिए बेनिफिट एन्योर हो रहा है तो 13(3) में कहते हैं कि ये इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, लेकिन 13(2) में लिखा हुआ है कि बेनिफिट एन्योर हो सकते हैं अगर वो मार्केट वैल्यू से है। आपने ट्रस्टी से कोई रेंट पे जगह ले रखी है, अगर मार्केट रेंट पे कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट आप उस ट्रस्टी को नहीं दे रहे। ट्रस्टी से आपने लोन ले रखा है, मार्केट रेट से इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्टी को सैलरी दे रहे हैं, अगर उसकी वाइफ को टीचर बनाया या सैलरी दे रहे हैं तो ये नहीं है अगर वो रीजनेबल है एज पर द कंसर्न। ये बहुत इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताया। 13(3), 13(2) पढ़ लीजिए साथ में, दैट मेक्स अ डिफरेंस इन दैट। लेकिन अब अनोनिमस डोनेशन सर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग गार्ड तो दी जाएगी ना। मैं समझा नहीं क्या करना चाहिए। सर देखिए ऐसा है, डोनेट करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम, विदाउट डिसोल्यूशन एक्यूमुलेटेड इनकम डोनेट हो ही नहीं सकते। आप डिसॉल्व करिए, डोनेट कर दीजिए, विदाउट डिसोल्यूशन कोई डोनेट नहीं माना जाएगा, वो तो माना जाएगा नॉन एप्लीकेशन।
तो इसलिए अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपको अक्रीटेड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अक्रीटेड इनकम इज वैल्यू ऑफ ऑल एसेट अक्वायर्ड फ्रॉम द इनकम माइनस द लाइबिलिटीज, उसमें 30% टैक्स देना। डोनेट करना था तो डिसॉल्व करना चाहिए था, और डिसॉल्व करके आपको सारी एसेट डोनेट करनी चाहिए थी, सिमिलर सॉरी टू द अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच इज रजिस्टर्ड इन 1233। नहीं माना जाएगा, कैंसिल कर दो तो चलो बचा लो, अपने किसी को दे दो। नहीं माना जाएगा सर, नहीं माना जाएगा, वो तो टैक्स लगेगा। ये 115 TD बड़ा स्ट्रॉन्ग केस आया है, पहले कुछ भी हो सकता था, अब नहीं हो सकता सर। अनोनिमस डोनेशन सब में होगा सर, और 85% जो एप्लीकेशन है उस पर लिखा गया एप्लीकेशन शुड नॉट एन्योर द बेनिफिट टू दी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13(3), तो वो बिल्कुल एप्लीकेबल। देखिए जब 6 और 6A में आते हैं 1 करोड़ से ऊपर वाले, उसके और लेवल 12 के सेम रूल्स, सेम कंडीशन है, सेम एप्लीकेशन है, सिर्फ उसमें कॉर्पस डोनेशन का फर्क है, बाकी सारी रूल्स वही लागू है। क्लियर हो गया सर? अब मैं अनोनिमस ले लूँ कि छोड़ दूँ, डिपेंड करेगा। 1 करोड़ का क्या है सर? आवाज नहीं क्लियर आती यहाँ पर। हेलो सर, ग्रॉस रिसीट्स की डेफिनेशन 1 करोड़ में क्या क्या शामिल है? क्या करना चाहिए? ग्रॉस रिसीट्स की डेफिनेशन 1 करोड़ से नीचे वाला का ऑडिट जरूरी नहीं है। 101% रिटर्न सबके लिए जरूरी हो गई, चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाई गवर्नमेंट हैं, चाहे करोड़ से नीचे हैं, सबके लिए रिटर्न जरूरी है, और नहीं तो पेनल्टी लगेगी उसको 272A 100 रुपी पर डे फॉर ईच डे ऑफ फेलियर टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। सर ग्रॉस रिसीट्स की डेफिनेशन, ग्रॉस रिसीट्स सर, अब ये ग्रॉस रिसीप्ट, पहले आप नाश्ता करते रहे, यहाँ आए नहीं, अब मुश्किल है। 1 करोड़ की रिसीप्ट नहीं सर, अब नहीं बताऊंगा, हो चुका है सर। नाश्ता ना करते ना, पहले आ जाते तो सब कुछ पता लगता। अब दोबारा टाइम नहीं है, नहीं तो प्रकाश जी मुझे कहेंगे कि आपने टाइम ज़्यादा ले लिया। आई बीन गिवन अलॉटेड टाइम, यू वांट टू आस्क मी आफ्टर द प्रोग्राम, यू कैन आस्क मी, बट इट इज़ नॉट ईजी टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। मेरे को लास्ट पॉइंट करने दीजिए। अनोनिमस डोनेशन, if you receive any anonymous donation, means where the name of the donor, address of the donor and the PAN number of the donor is not there, it is treated as anonymous donation. And if it is anonymous donation, it is taxable in the hands of a charitable trust, in the hands of trust covered under section 1023C. charitable की बात कर रहा हूँ, मैंने religious नहीं बोला, charitable, क्योंकि भगवान को तो मिलती है anonymous donation है। गुप्त दान, दान नहीं गुप्त होता, भगवान को तो नंबर 2 का ही दान मिलता है, नंबर 1 का दान कोई भगवान को देता ही नहीं। और कई बार तो इतना बढ़िया आदमी है वो कि हर जगह पार्टनर बन जाता है आपके साथ नंबर 2 के काम आने। आप कहते हैं मेरा ये काम कर दे, तेरा 5 लाख रुपए में तेरे नाम के लिए, 10 लाख रुपया तेरे नाम। ये अनोनिमस भगवान को दान दे रहे। हमारा तक भगवान इतना बढ़िया है कि वो तो क्रेडिट पे भी काम कर देता है। हम जाके माता के दर्शन करते हैं तो पास, तो मैं आऊँगा तेरे पास, मुझे पास करा दे। वो बेचारी करा ही देती है, फिर आप दर्शन करने जाते हैं, नहीं तो दर्शन भी करने नहीं जाते। इससे बढ़िया आदमी कौन मिलेगा? ऐसा भगवान मिलेगा जो क्रेडिट पे भी काम कर देता है। और औरतों तो और मिसयूज करती है, 16 व्रत करती हैं मंडे का और कहते हैं मेरी शादी करा दे, वो बेचारा करा भी देता है। तो इतना बड़ा आदमी, तो वो डोनेशन जो मिलती है उसको मोस्टली ब्लैक मनी मिलती है, नंबर 2 की मिलती है। नंबर 1 की डोनेशन अब शुरू होगी डिमोनेटाइजेशन के बाद, पहले तो नंबर 2 की डोनेशन थी। तो ये जो भगवान को डोनेशन मिलती है वो अनोनिमस हो सकती है। रिलीजियस ट्रस्ट के लिए डोनेशन अनोनिमस हो सकती है, चैरिटेबल ट्रस्ट की डोनेशन अनोनिमस नहीं हो सकती। अगर अनोनिमस है तो वो एग्जेम्प्ट है 5% of the total donation or ₹1 lakh, whichever is more. Maximum 5% of the total donation, or what I said, 1 lakh, whichever is more. बाकी पर maximum rate of tax लगेगा 30%.
5% और 1 लाख विच एवर इज मोर, ये माफ है जी अनोनिमस डोनेशन। लेकिन अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सॉरी एक ट्रस्ट है जो पार्टी चैरिटेबल है और पार्टी रिलीजियस है, उस केस में क्या होगा? लॉ कहता है जो डोनेशन रिलीजियस एक्टिविटी के लिए आई वो तो माफ होगी, अनोनिमस जो चैरिटेबल के लिए आई वो माफ होगी। जैसे बालाजी ट्रस्ट है, आपका गणपति बालाजी वो जो देवस्थान है, वहां पर ट्रस्ट की अगर डोनेशन आती है तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी भी करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी भी करते हैं। अगर वो रिलीजियस ट्रस्ट में आएगा तो वो माफ है, अगर वो चैरिटेबल में आएगा अनोनिमस तो माफ है। तो उनका दिमाग खराब है, वो कहेगा चैरिटेबल में ले अनोनिमस, वो कहेंगे रिलीजियस में आया और चैरिटेबल में खर्च कर दिया। सो देयर इज नो हार्म इन दैट, बट प्लीज anonymous donation received by a religious trust is not treated as anonymous donation, but anonymous donation received by a charitable trust is taxable in excess of a certain amount which has already explained to you. तो एक राजीव जी से 11 बजे तक था, हाँ तो 11 बजने वाले हैं, तो इसलिए कोई 2-3 मिनट हैं जो किसी ने पूछना पूछिए, नहीं तो मैं थैंक यू वेरी मच करने जा रहा हूँ। पूछ हाँ जी, टोटल 5%, उसमें टोटल ग्रॉस रिसीट्स ही काउंट होगी। हाँ हाँ थोड़ा अमाउंट 5%। ये 2000 की लिमिट यहाँ थोड़ी आई है, वो तो ATG के लिए आई है, वो तो वहां पर आई है कि तो ATG की डोनेशन देंगे तो 2000 से कैश से ऊपर होगी तो वो नहीं मिले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ कोई ऐसी लिमिट नहीं है, कैश दो, भगवान को तो कैश ही मिलता है। आप चेक देते हैं भगवान को, काम होने के बाद कहेंगे चेक डिसऑनर करा दे, हो गया काम मेरा। भगवान को कोई कैश नहीं मिलता है, उसको सारा कैश नहीं मिलता। चलिए सर और पूछिए। हाँ जी सर आवाज नहीं आ रही सर। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है, तो डोनेशन तो कभी 11(1)D में आएगी जब 12AA में रजिस्टर्ड है। प्लीज अगर आप 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपकी सारी डोनेशन टैक्सेबल है, चाहे वो कॉर्पस हो या नॉन कॉर्पस हो, चाहे आप अप्लाई करें या ना करें, फुल्ली टैक्सेबल है। एग्जेप्ट तभी होती है जब आप 12AA में रजिस्टर्ड है। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड में 12AA इट इज नॉट एग्जेप्ट, प्लीज एब्सोल्युटली नॉट देयर। कॉर्पस क्या नॉर्मल कोई भी एग्जेप्ट नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन में कॉर्पस डोनेशन अनलेस यू आर 11(1)D तो आता ही कब है जब 12AA होगा, नहीं तो 11(1)D आएगा ही। सर ये एक्लरेटेड ट्रस्ट के केस में जो मार्केट वैल्यू भी टैक्स और कॉस्ट प्राइस समझ नहीं आया सर। ये एक्लरेटेड जो ट्रस्ट के केस में आपका जो डिजोल्यूशन का मैटर आता है, डिजोल्यूशन का मैटर आता है तो उसमें मार्केट वैल्यू टैक्स दोगी या मार्केट वैल्यू रूल 17 में सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू कंप्यूट द मार्केट वैल्यू, वो रूल देखना पड़ेगा। वो मार्केट वैल्यू कंप्यूट करके माइनस करके उसके ऊपर 30% टैक्स करता है। नाउ माय वन क्वेश्चन इज दैट वेदर द ट्रस्ट इज द रिटर्न इज टू बी फाइल्ड विद इन टाइम और इट कैन बी फाइल्ड अप टू 31st। अब आपको पता लग गया 11(2) लेना है, 11(2) की एग्जेम्पशन लेनी है तो विद इन टाइम करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं है। फॉर दैट असेसमेंट फॉर अप टू द 17-18। सर मैं तो अब मैं लॉ नया पढ़ा रहा हूँ, पुराने केस आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैंने ये कहा है फॉर्म 10 भी ड्यू डेट से पहले भरना है और रिटर्न भी ड्यू डेट से पहले देनी है। दोनों में से एक भी डिफॉल्ट हुआ तो आपको वो 11(2) का एग्जेम्पशन नहीं है। 11(2) एग्जेम्पशन लेना मीन जो मोर देन 15% है, रिटर्न विल हैव टू बी फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट एंड फॉर्म 10 विल हैव टू बी फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। If either of the two default is committed, you are not allowed exemption for 11(2). ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है, 11(2) नहीं मिलेगा। वो ठीक है 2 साल पहले आया, उससे पहले तो मिलता था, उससे पहले मिलता था, उससे पहले तो आप फॉर्म 10 भर सकते थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट ऑल्सो, बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइल फॉर्म 10 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट। इट हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इफ यू हैव टू क्लेम एग्जेम्पशन, अदरवाइज विल नॉट बी अलाउड। क्लियर है सर? जिसने भी पूछा, मुझे नहीं पता, जिसने भी पूछा क्लियर। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो 12A में रजिस्टर्ड है और 1023C में भी अप्रूव्ड है, और ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन 1023C की फाइल कर दी और उसने रिटर्न जो भरा है 139। आपने 10BB की रिपोर्ट भर दी, 10B की भरनी थी, यही कह रहे हैं ना? 10BB भर दी रिपोर्ट। हाँ 10B भरनी थी। गलती किसने करी, आपने कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने? नहीं, गलती तो हमने। हाँ तो आप करिए, रिवाइज कर दीजिए, आप उसको 1023C में ले लीजिए। हाउ डू आई फाइंड आउट कि है कि नहीं है?
नहीं, खत्म कर दिया, आप मेरे को दिखाओ मत। 1023C में ही भरा था, लेकिन उसको सेक्शन 139(4)A सेलेक्ट किया। आपने सर रिवाइज करना आपके हाथ में है, कर दीजिए ना, लेकिन ये गलत है। वहाँ पर 1023C भरो और उधर से 10B भरो, या इधर 10B भर दो और वहाँ उधर मतलब आप 12AA में क्लेम करो और 10BB में भरो, हालांकि सिमिलर लाइन है, बट यू आर कमिटिंग ए मिस्टेक। व्हाई डोंट यू रिवाइज इट? यू कैन डू इट, प्लीज रिवाइज इट। 10EB नहीं चलेगी, 10B चलेगी, क्योंकि 10B और 10BB में फॉर्मेट में फर्क है, उसकी एप्लीकेशन का रूल फर्क है। 10BB की एप्लीकेशन डिफरेंट नेचर की है, 10B की एप्लीकेशन डिफरेंट नेचर की है। मैंने बताया ना, वहाँ कॉर्पस डोनेशन माफ है या कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है, तो कैसे मान लिया जाएगा कि आपका वो सिमिलर है? नहीं मानेंगे। ठीक है सर, क्या चीज? चल अब टाइम हो गया, आप जो भी पूछ रहे हैं ब्रेक के बाद पूछिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं तो वो देख रहे हैं मुझे बार बार, उसने वो भी दिखा दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट। Thank you, sir. Thank you for sharing with us your